जी जनाब, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शमशाद। ये लाजपत नगर है जी। और यहाँ आप इसके वोटर हैं। जी। अगले महीने यहाँ इलेक्शन होने जा रहा है लोकसभा का। जी। आप वोट डालेंगे। जब आप वोट डालेंगे तो आपके दिमाग में क्या घूम रहा होगा, क्या यानी क्या प्रॉब्लम्स यहाँ के जिसके आधार पर आप वोट डालेंगे? प्रॉब्लम्स, समस्याएं क्या है यहाँ पे? समस्या यही है सर कि नाला वाला बहती रहती है, रोड सही नहीं है और गंदगी है थोड़ा। तो ये जो नाला सही नहीं है, सड़कें सही नहीं है, गंदगी है बहुत ज़्यादा, तो क्या आपको लगता है कि कौन सी पार्टी इन सारे प्रॉब्लम से, समस्याओं पे ध्यान देगी? हमको तो लगता है कि थोड़ा कांग्रेस ने कुछ काम किया है, इसलिए कांग्रेस को वोट देना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो पिछला जो अभी असेंबली का इलेक्शन हुआ था जी, तो उसमें आपने किसको वोट दिया था? कांग्रेस को। अच्छा, तो इस बार भी आप क्या कांग्रेस को वोट देंगे? जी। अच्छा, क्या कांग्रेस ने कोई काम किया? अच्छा, कोई बहुत बड़ा सारे काम किए हैं, जैसे फ्लाईओवर बनाया है, बहुत सारे हाँ लोग को देखभाल भी करते हैं। अच्छा अच्छा, पानी वानी का सुविधा भी किया है बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया। Kamal Ahmad Saab, in Delhi there will be Lok Sabha elections next month and you are the voter. When you will be voting in the elections, what issues will be in your mind? That actually the last election, the Muslim community of Delhi has given the overwhelming majority to the Congress party, and they have promised to give the lot of facilities to the Muslim community, but unfortunately they are failures in this regard. And now the Muslims are thinking that they are not giving the facilities to the Muslim community of Delhi, especially the locality, and they are having lot of problems. Lot of problems are those like constructions are not being properly going on. There is a problem of the police is creating problems to the persons who are trying to construct the house. House problem is there, as road problem is there, water supply problem is there. Especially in the Jamia Nagar locality, you will find that whatever the drinking water supply is there, that is not proper and clear and feasible to drink. Not of number of times that has been tested, and there are found that a lot of these chemicals are found in this, and no any government is giving the attention on such type of things. So, like you will find that complaint was there, an encounter was in the L18. All the peoples of this locality has complained to the ministers, prime ministers, and lot of dignitaries of the, and press media has also highlighted that problem, why the encounter happened, and there is suspicion in that, but still the government of India, especially the Delhi government and Congress government of India, is not taken any commission to be inquired. Right. Yeah, Mr. Kamal Ahmad Sahab, in fact these issues have been long for here in this locality, and in spite of that, in spite of Batla House encounter, people voted to Congress to power in Delhi State Assembly election. And then, do you think that Congress itself will be able to redress these issues? Actually, every time they are promising, and Muslim community of this locality and voters of this locality is believing on that. But this 60 years experience is against that. And now the Muslim community and voters of this locality is thinking we should reconsider whether we should vote to the Congress or we should go to other parties. Then what's the alternative? What's the alternative? Lot of alternatives there, like SP is there, BSP is there, and Third Front is also coming out. And there is not a Muslim community or voters of Delhi is bound to the Congress. They should mind that whatever they are promising, they should commit for that, and they should give the facilities to that. Of course, the Delhi Congress party government have developed lot of things. Like you think, the overbridge facility, like metro stations is there. Not a single metro train is passing nearby to the Jamia Nagar community. They should pass the metro station train through the Jamna banking embankment.
but they have not decided that. They are ignoring the Muslim community of this locality. So this is compelling to the Muslim community to rethink that to whom we should give the vote. Last question. Which party are you going to vote? Of course, alternative we are thinking, and this time we have not decided which party we should vote. But of course, we are trying to think that a alternative party should be considered against the Congress. Thank you very much. असलम साहब, आप इस दिल्ली के बाशिंदा हैं, वोटर हैं आप। अभी 1 महीने के बाद यहाँ इलेक्शन होने जा रहा है, लोकसभा का इंतखाब होने जा रहा है। जब आप वोट डाल रहे होंगे उस वक्त आपके जहन में कौन से इश्यूज होंगे जिनके आधार पर, जिनकी बुनियाद पर आप वोट दे रहे होंगे? सबसे बड़ी समस्या तो पानी की और बिजली की है, जो दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। और सभी पार्टियां वादे करती हैं, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आता कि उसको वादे को पूरा करेगा। हमारे इलाके के जो एमएलए हैं उन्होंने काफ़ी कोशिश की है पानी के लिए, लेकिन आज भी पानी की समस्या है हमारी गली में, हमारे इलाके में। लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या है, बराबर इतनी कटौती होती है जिसका पता भी नहीं होता कि लाइट कब चली जाएगी और कितनी देर में आएगी, कुछ पता नहीं होता। लेकिन जा ही रही है लाइट भी, और ये दोनों चीज़ें हैं। अब कांग्रेस के कपिल सिब्बल जी हैं, वो वायदा कर रहे हैं कि आगे लाइट नहीं जाएगी, पानी पूरा मिलेगा, कांग्रेस को वोट दो। और कांग्रेस एक पार्टी ही ऐसी नज़र आती है जो देश को अब तक सही ढंग से चलाती आई है, तो हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। और 2-3 यही हमारी समस्याएं हैं कि पानी और बिजली सबसे अच्छे ढंग से मिलना चाहिए हमें, जो पूरा ढंग से नहीं मिल पाता है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस आपके इन इश्यूज पे, इन मसले पे काम कर रही है? हाँ, कांग्रेस से सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि वही कर रही है और वही आगे करेगी। इसलिए आप वोट उसी को देंगे? कांग्रेस पार्टी को। बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत, आपका नाम क्या है? मुझे डॉक्टर शहीदुद्दीन कासमी कहते हैं। जी, ये नागलोई का एरिया है, यहाँ के आप वोटर भी हैं? जी। ये अगले महीने जी यहाँ लोकसभा इंतखाबात होने जा रहे हैं जी, तो जब आप इलेक्शन में वोट डाल रहे होंगे मौलाना, तो उस वक्त आपके जहन में कौन सा सवाल होगा, कौन से मुद्दे होंगे, मसाइल क्या होंगे जिनके आधार पर आप वोट डाल रहे होंगे? देखिए, हमारे यहाँ की लोकेलिटी जो है उसके सामने ज़्यादातर जो है एक तो इत्तेफाक और इत्तेहाद है कि यहाँ के जो लोग हैं हिंदू मुस्लिम, इनमें इत्तेफाक और इत्तेहाद हो। तो जो पार्टी इत्तेफाक और इत्तेहाद के लिए काम करती है उन्हीं को यहाँ के लोग जो है सपोर्ट करते हैं और अब तक करते आए हैं। और उसमें ज़्यादातर कांग्रेस को ही समझते हैं कि यहाँ के इशू को वो समझ सकती है और मुसलमानों को और सारी कौमों को एक साथ लेकर के चलती है। तो इस एतबार से एक तो इशू ये है। दूसरा इशू ये है काम करने के एतबार से, यहाँ पर आजकल जो काम चल रहे हैं सड़कों का और नालियों का और दूसरे पुल वगैरह और एक मेट्रो भी निकाली है, तो इस एतबार से भी लोगों के सामने है कि कांग्रेस ने काम किया है और इसको एक मौका और देना चाहिए। इसलिए ज़्यादा जहन में यही है कि कांग्रेस को वोट दिया जाए। यहाँ शहरी मसाइल मौलाना, इस नागलोई एक बड़ा एरिया है जहाँ कई लाख लोग रहते हैं, यहाँ शहरी मसाइल क्या है? शहरी मसाइल में बिजली पानी का मसला काफ़ी तौर पर हल हो गया है। किसी ज़माने में यहाँ पर पानी नहीं होता था, मिलता था, बिजली नहीं होती थी, हम लोग नलों से भरते थे, लेकिन अब काफ़ी हद तक मसाइल पानी बिजली के हल हो गए हैं। और कुछ मसाइल हैं अभी पानी की, कभी कभी पानी की तो थोड़ा हो जाता है, लाइट जाती है तो लाइट का थोड़ा मसला है, और कुछ अभी नालियों का भी है। कुछ इलाके हैं जिनमें कीचड़ और गंदगी रहती है, तो उसका ये मसाइल है जो कारपोरेशन से ताल्लुक़ रखती हैं। अभी आपने फरमाया कि आमतौर पे यहाँ लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, तो क्या कांग्रेस को सपोर्ट खुशी से करते हैं या कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसलिए करते हैं? नहीं, सारे लोग नहीं करते, अलग-अलग करते हैं। कारपोरेशन में देखिए बीजेपी का नुमाइंदा कामयाब हुआ है, और यहाँ इस इलाके में आपके 50 साल बाद बीजेपी का दिल्ली एमएलए भी बीजेपी का बना है। तो ये नहीं कि वो तो हालात को देख के लोगों के जहन बदलते रहते हैं, कोई मुस्तकिल यही नहीं है कि कांग्रेस को दे, औरों को भी देते हैं। लेकिन ज़्यादातर बेल्ट जो है मगरबी दिल्ली की, उसमें ज़्यादातर सुल्तानपुरी है, मुगलपुरी है, मोस्टली ज़्यादातर लोगों का रुझान अब तक कांग्रेस की तरफ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना।